So good morning, dear student. Today I will discuss on the numerical on the reciprocating air compressor. This is the part of Unit 4, and the subject name is Thermal Engineering Gas Dynamics, Semester 6. This is the outline. Numerical on the single stage reciprocating air compressor. Second is the numerical on the single stage single acting reciprocating air compressor. That is in the short form is the RAC. Third is the numerical on the single stage double acting RAC reciprocating air compressor. This is the first problem of today's lecture. A single stage reciprocating air compressor takes air in 8 meter cube per minute of air at a 1 bar 30 degrees centigrade and deliver it a 6 bar. The clearance is 5% of the stroke. The expansion and compression are the polytropic with the value of n is equal to 1.3. Calculate temperature of deliver air, volumetric efficiency, and the power of the compressor. This is a simple numerical where the inlet condition are the given. So suction condition here it is represented 1 bar and 30 degrees centigrade, and the volume is 8 meter cube per minute. So here the volumetric efficiency is not given, but clearance is given 5% of the strokes. So that's why कि volumetric efficiency आपकी यहाँ पे निकालने के लिए भी बोल रहा है, साथ में क्लियरेंस स्पेस दिया है, तो जाहिर सी बात है कि वहां पे वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी आपको निकालनी पड़ेगी. तो जो ये वॉल्यूम है ये आपका वॉल्यूम V1 माइनस ऑफ V4 हो जाएगा. अदरवाइज पहले क्या होता था कि यदि आपके पास क्लियरेंस वॉल्यूम 0 रहता था तो दैट इज द ओनली V1, बट इफ द क्लियरेंस वॉल्यूम इज सम परसेंटेज 5% ऑफ द स्ट्रोक, दैट मींस द V1 माइनस ऑफ V4 इज इक्वल टू 8 मीटर क्यूब पर मिनट. दिस इज रिप्रेजेंटेड इन द डायग्राम, जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ते थे डायग्राम में. ये दिस इज द टू लाइंस हियर, द दिस इज द कंप्रेशन, this is the expansion, this is the suction. 1 2 3 and this is 4. Okay, so these all these process represented in the PV diagram where the clearance is considered. This is the PV diagram in which all the things are clear. Here it is called the clearance volume. ये आपका clearance space के नाम से जाना जाता है. This is the VC, and after that this is the volume that is called the VS. ये हमको भली बात ही पता है. तो VC plus VS is equal to total volume. 1 to 2 and 3 to 4. 1 to 2 is the compression polytropically, and 3 to 4 is expansion polytropically. Both follow the polytropically law, and the value of n is equal to 1.3. This is given in the question 1.3. Inlet condition 1 bar, P1 is equal to 1 bar, 1 into 10 power 5 Newton per meter square. T1 temperature 30 degrees centigrade is given, 30 plus 273, 303 Kelvin. P2 is the delivery pressure 6 bar, and it is converted 6 into 10 to power 5 Newton per meter square. VC is the some percentage of the stroke volume. This is the 5% of the stroke volume, 0.005 VS. So these parameters are given, and after that you will be calculate the temperature of deliver air. तो इस पॉइंट पे आपको टेम्परेचर निकालना है, T2 की वैल्यू निकालनी है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी और पावर ऑफ द कंप्रेसर. These parameters will be calculated in the next slide. So this is the formula जो आपको निकालना है temperature of the deliver air. So let's consider T2 is equal to temperature of the deliver air, and we know that for a polytropic compression process 1 to 2, this is the formula according to the thermodynamics law कि हमने वहां पे जो डायग्राम बनाया था उसके हिसाब से यहाँ पे polytropically जो रूल लग रहा है, that is the T2 by T1 is equal to P2 by P1 to the power of n minus 1 by n. This is the main fundamental formula, and the P2 value is given 6, P1 value is given 1, and the value of n is given 1.3 minus of 1 upon 1.3, and the finally
value after the simplification, that is T2 is coming 184.5 degree centigrade and T2 is equal to also here given is a 457.5 Kelvin. तो यदि आप केल्विन में चाहते हैं तो ये रिजल्ट है, और यदि डिग्री सेंटीग्रेड में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये आपके पास है. तो दिस इज द T2 वैल्यू. ओके, volumetric efficiency, we know that here K is equal to, we know that the clearance ratio VC by Vs. So VC is given in the question 0.05 Vs upon Vs. This is the value of 0.05, and the volumetric efficiency, this is the formula 1 plus K minus of K in the bracket of P2 by P1 to the power of 1 by n. तो यहाँ से आपके पास जो वैल्यू आएगी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी की, दिस इज 0.85 in the percentage form 85%. This is the volumetric efficiency. Power of the compressor, power of the compressor भी आप निकाल सकते हैं. Power of the compressor का formula here, the we know that about the work done, W is equal to n upon n minus 1. This is the P1. क्योंकि यहाँ पे अपने पास V1 की जगह V1 minus of V4 है because of the clearance volume in the bracket of P2 by P1 to the power of n minus 1 by n minus of 1. तो आपके पास n की वैल्यू भी अवेलेबल है, P1 की वैल्यू भी अवेलेबल है, V1 minus of V4 8 है, और P2 by P1 this is the value 6 by 1 and n की वैल्यू इज अवेलेबल 1. तो यहाँ से अपने पास जो रिजल्ट आ रहा है ये जूल पर मिनट में है, इसी को हमने किलो जूल पर मिनट बना दिया, और चूंकि डिवाइड कर देंगे 60 से तो ये आपका किलो जूल पर सेकेंड, दैट मीन्स द किलोवाट, दिस इज द पावर. तो वर्क डन में क्या करना था अपने को कि जितनी भी आपके पास वर्क डन की वैल्यू आ रही है पर मिनट के हिसाब से उसको 60 से भी आप डिवाइड कर देंगे तो आपके पास पावर आ जाएगी. तो दिस इज द फर्स्ट न्यूमेरिकल जो कि सिंपल न्यूमेरिकल था. आपने देखा यहाँ पे कि आपको टेम्परेचर ऑफ डिलीवर निकालना था तो T2 की वैल्यू आपने निकाल ली, आपको वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी निकालना था वो आपने निकाल ली, पावर ऑफ द कंप्रेसर निकालना था तो आपने पहले वर्क डन कैलकुलेट कर लिया, देन उसके बाद आपने 60 से डिवाइड करके, क्योंकि वो मिनट में निकल के आया था आपका वर्क डन, 60 से डिवाइड करके हमने पावर निकाल ली. दिस इज द सेकंड न्यूमेरिकल. A single stage, single acting reciprocating air compressor is required to handle 50 cubic meter of free air delivery per hour measured at a 1 bar pressure. The delivery pressure is 6.5 bar and the speed is 500 rpm. Allowing a volumetric efficiency. Volumetric efficiency is given 75%, isothermal efficiency 70%, and a mechanical efficiency 90%. Calculate the indicated mean effective pressure and power required to drive the compressor. These parameter will required to calculate. तो यहाँ पे आपके पास कंडीशंस दी हुई हैं. सबसे पहली कंडीशन जो है शुरुआत से बात करेंगे कि सिंगल स्टेज है और सिंगल एक्टिंग है और रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर है. ध्यान रखिएगा यहाँ पे डबल एक्टिंग नहीं है, सिंगल स्टेज सिंगल एक्टिंग है, और चूंकि 50 मीटर क्यूब पर आवर की एयर जो है हैंडल हो रही है, दिस इज द वॉल्यूम. 1 बार प्रेशर आपके पास इनलेट कंडीशन, डिलीवरी प्रेशर 6.5 बार जैसा कि पिछले क्वेश्चन में दिया था, स्पीड जो है आपका 500 आरपीएम है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इज आल्सो गिवन 75%, आइसोथर्मल एफिशिएंसी इज गिवन 70% और मैकेनिकल एफिशिएंसी आपकी 90% दी हुई है. तो आपको इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर निकालना है. तो इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर निकालने के लिए आपको इंडिकेटेड वर्क डन पता होना चाहिए. इंडिकेटेड वर्क डन के बाद आपको स्विफ्ट वॉल्यूम पता होना चाहिए. इन दोनों का जो रेशियो रहेगा दैट इज कॉल्ड द इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर. एंड सिमिलरली पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव द कंप्रेसर, जैसा कि प्रीवियस प्रॉब्लम में आपने किया था कि वर्क डन निकाला था और वर्क डन में आपने देखा था कि आपका जो वॉल्यूम है वो यदि आपका मिनट या आवर के बेस पे है तो उसको हम सेकंड में कन्वर्ट करके पावर बना रहे थे. ठीक है. मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑलरेडी डिस्कस इन द क्वेश्चंस कि मैकेनिकल एफिशिएंसी इन द क्वेश्चन इज गिवन 90%. आपको इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर निकालना है. वी नो दैट
फॉर द आइसोथर्मल वर्क डन का जो फार्मूला होता है वो ये है, दैट इज द P1V1 नेचुरल लॉग ऑफ P2 बाई P1। तो यहाँ से आप निकाल लेंगे कितना आपका वर्क डन हो रहा है आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल वर्क डन आपके पास आ रहा है 9359 किलो जूल पर आवर। अब ये जो आपका वर्क डन है, चूंकि यहाँ पे आपके पास आइसोथर्मल की इफिशियंसी दी है, आइसोथर्मल की 100% इफिशियंसी होती तो यहाँ पे जो आइसोथर्मल का वर्क डन है वो इंडिकेटेड वर्क डन के बराबर हो जाता। बट चूंकि हमारे पास आइसोथर्मल इफिशियंसी दी है, इसका मतलब इंडिकेटेड वर्क डन जो है हमारे पास ज्यादा रिक्वायरमेंट होगा। तो इंडिकेटेड वर्क डन की रिक्वायरमेंट कैसी हो गई कि दैट इज द फार्मूला कि आइसोथर्मल इफिशियंसी जो वर्क डन है दैट इज द डिवाइड बाय आइसोथर्मल इफिशियंसी, या दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं कि आइसोथर्मल की जो इफिशियंसी है वो इन दोनों का रेशियो रहता है, आइसोथर्मल वर्क डन टू द इंडिकेटेड वर्क डन का रेशियो रहता है। तो आइसोथर्मल इफिशियंसी यहाँ पे आपके पास दी हुई है, तो आप इंडिकेटेड वर्क डन निकाल सकते हैं जो कि आइसोथर्मल वर्क डन से ज्यादा आपका निकल के आ रहा है, दैट इज द 13370 किलो जूल पर आवर। अब आपके पास पता है कि स्विफ्ट वॉल्यूम जो पिस्टन का होता है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ फ्री एयर दिया हुआ है 50, बट वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी दी हुई है 0.75, और वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का जो फार्मूला होता है दैट इज द एक्चुअल वॉल्यूम अपॉन द स्विफ्ट वॉल्यूम। तो स्विफ्ट वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, आपका जो एक्चुअल वॉल्यूम दिया है डिवाइड बाई वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जाएगी। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी आपकी 75% है तो 0.75 लिख सकते हैं। तो आपका स्विफ्ट वॉल्यूम यहाँ पे निकल जाएगा 66.67 मीटर क्यूब पर आवर। अब इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर निकालना है, तो इट इज वेरी वेरी सिंपल। आपने वर्क डन पहले निकाल लिया है पिछली स्लाइड में, ये आपके पास आया था 13370 किलो जूल पर आवर। स्विफ्ट वॉल्यूम आपका आ रहा है मीटर क्यूब पर आवर, तो आवर टू आवर कैंसिल आएगा, तो जो आपका वो रहेगा किलो जूल पर मीटर क्यूब में रहेगा, तो उसको हमने चेंज कर लिया यहाँ पे, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ये जो आपका रहेगा, चूंकि 1 बार इक्वल टू 10⁵ मीटर स्क्वायर रहता है, तो उसको हमने कन्वर्ट कर लिया 2 बार में। तो दिस इज द फर्स्ट आंसर जो कि आपका रिक्वायर्ड था। अब पावर रिक्वायर्ड कितनी होगी, अब आपके पास आपको पता है कि जो इंडिकेटेड वर्क डन है वो आपका 13370 है, दैट इज द किलो जूल पर आवर। मैकेनिकल एफिशिएंसी 0.9 दी हुई है, तो इससे आपका जो एक्चुअल वर्क डन होगा वो निकल के आ जाएगा। एक्चुअल वर्क डन और रिक्वायर्ड रहेगा आपके पास, ये आपका किलो जूल पर आवर में के बेस पे निकल रहा है, और 1 आवर इक्वल टू होता है 3600 सेकेंड। तो जब इसको डिवाइड करेंगे आप यहाँ पे देखेंगे जो वैल्यूज निकल के आएगी आपकी, वो आपकी आएगी दैट इज अ 4.12 किलोवाट। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, जिसमें कि आपकी वैल्यू निकल के आ रही है पावर ऑफ द कंप्रेसर रिक्वायरमेंट। दिस इज द थर्ड प्रॉब्लम, क्योंकि आज की लास्ट प्रॉब्लम है। अ सिंगल स्टेज डबल एक्टिंग A single stage double acting air compressor deliver 5 meter cube of free air per minute at 1 atmospheric pressure 20 degree centigrade to 7.5 bar with the following data। आरपीएम दिया हुआ है, मैकेनिकल एफिशिएंसी दी है, प्रेशर लॉस दिया हुआ है, इनटेक वाल्व पे प्रेशर लॉस भी हो रहा है, ध्यान रखिएगा। प्रेशर यदि लॉस होता है तो वहां पे प्रेशर की वैल्यू जो एक्चुअल वाली प्रेशर की वैल्यू रहेगी कम हो जाएगी। टेम्परेचर राइज हो रहा है एयर ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक, टेम्परेचर राइज होगा तो वहां पे जो टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ जाती है। क्लियरेंस वॉल्यूम जो है 5% ऑफ द स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाता है, क्लियरेंस वॉल्यूम यहाँ पे आपका दिया हुआ है, तो वहां पे वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कम हो जाएगी। इंडेक्स ऑफ कंप्रेशन और एक्सपांशन की जो वैल्यू है n इक्वल टू 1.3, लेंथ ऑफ द स्ट्रोक 1.3 टाइम्स ऑफ द सिलेंडर डायमीटर। कैलकुलेट द पावर इनपुट टू द शाफ्ट, दूसरा आपको निकालना है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, और तीसरा निकालना है सिलेंडर डायमीटर। These are the following parameters are given in the questions, कि आपके पास जो वॉल्यूम है एयर वॉल्यूम एक्चुअल वॉल्यूम वो दिया है 5 मीटर क्यूब पर मिनट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया था 1 बार, या बोलना चाहिए 1.013 बार। जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वो आपको 20 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है। P2 की वैल्यू दी है डिलीवरी प्रेशर की 7.5 बार। एन जो है 300 आरपीएम दिया है, मैकेनिकल एफिशिएंसी 90% 0.9 है,
तो यदि प्रेशर लॉस हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे 0.04 बार जो लॉस हो रहा है उसको अभी हम एक्चुअल प्रेशर में दिखाएंगे। यहाँ पे टेम्परेचर राइज आपका 12 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है। जो क्लियरेंस वॉल्यूम है वो 5% ऑफ द स्ट्रोक वॉल्यूम है, और जो एन की वैल्यू 1.3 है, और जो सिलेंडर स्ट्रोक लेंथ है वो 1.3 टाइम्स ऑफ द डायमीटर है। By ideal gas equations, let V1 is the volume of free air at the suction condition। ये आपको पता होना चाहिए कि जो V1 का वैल्यू है वो वॉल्यूम ऑफ फ्री एयर कहलाता है। अब चूंकि प्रेशर लॉस हो रहा है 0.04, तो जो एक्चुअल प्रेशर रहेगा इनलेट कंडीशन पे P1 वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 0.04 माइनस जाएगा, तो 0.973 दिस इज द एक्चुअल प्रेशर एट इनलेट कंडीशन। ये आपका निकल के आ जाएगा। तो ये बार में है तो उसको आप 10⁵ से मल्टीप्लाई करके न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं। अब यदि टेम्परेचर राइज आपका 12 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक, तो टेम्परेचर जो बिगिनिंग ऑफ कंप्रेशन है वो निकाल सकते हैं। तो टेम्परेचर एट द बिगिनिंग ऑफ कंप्रेशन दैट इज द T1 इज इक्वल टू TA प्लस 12। तो यहाँ पे आप जब ऐड करेंगे तो वैल्यू आपकी बढ़ के निकल के आएगी, दैट विल बी कैलकुलेटेड 305 केल्विन। ये आपकी वैल्यू निकल के आई है। By ideal gas equation, we know that about the atmospheric condition and the actual condition. The atmospheric condition PAV upon TA is equal to P1 V1 by T1. तो power input to the shaft, we know that the indicated work done, ये आपका फार्मूला फिक्स है। तो n upon n minus 1 into P1 V1 in bracket of P2 by P1 to the power of n minus 1 by n minus of 1। तो n की वैल्यू आपके पास अवेलेबल है 1.3, P1 की वैल्यू आपने निकाल ली थी, V1 की वैल्यू 5.42 दी हुई है क्वेश्चन में। उसके बाद आपका जो P2 और P1 का रेशियो है वो यहाँ पे आपने वैल्यू नोट डाउन कर ली। तो इसके बाद जो आपका वर्क डन जो निकल के आएगा, पावर इनपुट निकल के आएगी, इट इज 1370 किलो जूल पर मिनट। एंड आफ्टर दैट कि उसको हमने पावर बनानी थी तो 60 से डिवाइड कर दिया तो किलो जूल पर सेकेंड हो गया, तो 1370 डिवाइड बाई 60 तो 22.8 किलोवाट आपका आ गया। अब आपके पास वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जो है उसके लिए भी फार्मूला हमने बताया था पहले कि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी के लिए फार्मूला होता है। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी के लिए K इज इक्वल टू 0.5% ऑफ द स्ट्रोक वॉल्यूम था, तो VC इज 0.05 VS, दिस इज द फार्मूला, डिवाइड बाय VS, तो क्लियरेंस रेशियो आपका आ जाएगा 0.05। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी निकालेंगे तो आपकी यहाँ पे निकल के आ रही है डिपेंडिंग ऑन द दिस प्रेशर रेशियो आल्सो, फार्मूला इज फिक्स। तो आपकी 81% जो है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी आ जाएगी। Then move to the cylinder diameter. We know that about the stroke length is given here, that is the 1.3 times of the cylinder diameter, and we know that the swept volume per strokes, it is the formula pi by 4 d square into L। This is the formula, and the compressor is double acting। ध्यान रखिएगा शुरू में प्रॉब्लम में लिखा था सिंगल स्टेज डबल एक्टिंग, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वर्किंग स्ट्रोक्स हो जाएंगे 2n हो जाएंगे, तो 2 into 300 तो 600 आपके वर्किंग स्ट्रोक्स पर मिनट हो जाएंगे। एंड स्वेप्ट वॉल्यूम पर मिनट यहाँ पे जब मल्टीप्लाइड करेंगे 1.02 DQ, तो इससे आपकी वैल्यू निकल के आएगी 612.6 DQ। अब आपके पास स्वेप्ट वॉल्यूम ऑलरेडी पता हुआ है, उसको जब आप यहाँ पे पुटअप करेंगे, वी नो दैट अबाउट द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, दिस विल बी कैलकुलेटेड in the previous slide 0.81 is equal to V1 upon VS। तो VS जो है आपके पास ये निकल के आई है वैल्यू, और V1 की वैल्यू ये है आपके पास 5.42। तो यहां से आप क्या निकाल लेंगे, जो D की वैल्यू है सिलेंडर डायमीटर वो निकल के आ जाएगी, दैट इज द 220 mm, ये वैल्यू निकल के आएगी। और इसी तरीके से L इज इक्वल टू 1.3D दिया हुआ है, तो आपके पास D की वैल्यू 220 mm निकल के आई है। जब इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 1.3 से, तो जो स्ट्रोक लेंथ की वैल्यू है वो 286 mm निकल के आएगी। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, दीज आर द रिक्वायर्ड आंसर जो आपको प्रॉब्लम में जरूरत पड़ रही थी।